اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازے کے قریب قیدیوں کی 3 وینز پر نامعلوم افراد کا حملہ۔ وینز میں سوار پی ٹی آئی کے 3 ایم پی اے سمیت متعدد قیدی فرار۔ نامعلوم افراد نے پولیس قیدی وینز پر فائرنگ کی، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیے۔ گاڑیوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی سوار تھے۔ قیدیوں میں زیادہ تعداد پی ٹی آئی احتجاجی کارکنوں کی تھی۔ انتشار انگیزی اور دہشت گردی مقدمات میں نامزد ملزمان شامل۔ کرنول کے علاقے میں پولیس کا حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی عینی شاہدین سے پوچھ گچھ، پولیس نے حملے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وزیر بہبود آبادی خیبر پختونخوا کا بیٹا بھی شامل۔ تمام حوالاتیوں اور متاثرہ قیدی وینز کو پولیس لائن منتقل کر دیا گیا۔ تحریک انتشار کے کارکنوں نے منصوبہ بندی کے تحت قیدی وینز پر حملہ کیا۔ آدھی ملزمان کا منصوبہ ناکام رہا، 4 حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ایم پی اے لیاقت کا بیٹا بھی شامل۔ ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حملہ آوروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ منصوبہ سازوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ 4 گاڑیوں میں مسلح افراد نے ٹول پلازے کے قریب حملہ کیا۔ 2 گاڑیاں اور اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا۔ کیپٹل ہل اور لندن رائلز واقعات میں ملزمان کو سزائیں ہوئیں۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا مل گئی ہوتی تو ایسے حملے کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تحریک انصاف کا رد عمل مضحکہ خیز اور فلم کی سٹوری لگتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے واقعے کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ ترنول کے ایس ایچ او نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کے شیشے توڑے۔ سرکاری ملازمین کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ڈرامہ رچایا کہ یہ ظاہر کیا گیا کوئی حملہ ہوا۔ آئے روز آپ کے ڈرامے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ڈرامے بند کرنا پڑیں گے۔ آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک معاون خصوصی، ایم پی ایس اور متعدد پولیس اہلکاروں پر جعلی مقدمات درج ہیں۔ ملک میں لاقانونیت کا رواج شروع کیا گیا۔ الیمین گنڈاپور کا ویڈیو بیان۔ تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ حملے کے بعد کچھ قیدی وین سے فرار ہوئے تھے۔ 3 قیدی وینز میں 82 ملزمان موجود تھے۔ ملزمان کو پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد 30 سے زائد تھی۔ حملہ آوروں میں ایم پی اے کا بیٹا شامل ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی گفتگو۔ حملہ آور اسلحہ، ڈنڈے اور پتھروں سے لیس تھے۔ حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس۔ ایک عہد تمام۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ مدت پوری کر کے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ آخری دن مقدمات کی سماعت نہیں کی، چیمبر ورک کیا۔ نئے تعینات چیف جسٹس یحییٰ فریدی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں صبح 11 بجے ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ تقریب کے انتظامات مکمل، مہمانوں کو دعوت نامے جاری۔ کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فکرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے۔ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاز لیس بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا۔ کاز کیس لگنا ہے، کون سا لگنا ہے، میں نے کہا ان کا کام، میرا کام نہیں۔ ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ، دوسری پارٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر چند سطریں لکھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ انصاف دینا ہمارا فرض ہے۔ میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے۔ کاز لسٹ بنانے میں کبھی مداخلت نہیں کی، کیونکہ کون سا کیس لگنا ہے کون سا نہیں یہ میرا کام نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ ریفرنس میں شریک ہونے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریفرنس میں شریک نہ ہونے والوں کا بھی شکریہ۔ میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں لیکن اہلیہ نہیں مانتی۔ کہا گیا کہ آپ نے مارگرا ہل سے متعلق فیصلہ دیا۔ میں نے کہا کہ جانوروں کا بھی ایک گھر ہے، ماحولیات پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ چیف جسٹس نے اپنی اہلیہ اور ساتھی ججوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतन मिनल्ला रेफरेंस में शरीक ना हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, 2 एटॉक, 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, खवातीन के हकूक़ के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया, तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा, फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देनी होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, I have learnt a lot. खवारजियों का लकी मरबत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। लकी मरबत के 19 साल के कैडेट आरिफ उल्लाह शहीद हो गए। खवारिज ने नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला किया। कैडेट आरिफुल्लाह भी इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खवारिज ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, आरिफुल्लाह ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। आरिफुल्लाह ने जान का नजराना देकर कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचाई हैं। जिससे आरिफुल्लाह शहीद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। शहादत के वक्त जीसी आरिफुल्लाह छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। नमाजियों पर हमला खवारिज के हकीकी नजरिए की अक्कासी करता है। ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 90,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1047 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 89,993 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, 277 रुपये 64 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी, फी तोला कीमत 2,82,300 रुपये हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की 100 इंडेक्स के 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह से तजावुज़ पर मुबारकबाद। सियासी मुखालिफिन को भी खरी खरी सुनाती। पाकिस्तान को डिफाल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई है। अवाम से अहद किया था कि मुल्क को मुजरमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में हर महाज पर बेहतरी आई है। पुरुमीद हूँ आइंदा चंद रोज़ में मुईशत की बेहतरी के हवाले से मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 से अब तक 36% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आगे तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 8.8 अरब डॉलर पर पहुँच गई। मुसलसल 2 माह से करंट अकाउंट सरप्लस में है। IPPs के साथ माहितों पर नजरसानी शुरू हो चुकी है। जजेस कमेटी के अरकान की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की आवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। पंजाब हुकूमत के मुआशी विजन को सराहा। पाक बेल्जियम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली मुनव्वर हुसैन और राना मोहम्मद फ़ियाज़ की मुलाकात।
वज़ीर आला का तरक्याती मनसूबों और CM इनिशिएटिव की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाह के प्रोजेक्ट को सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ एक रोज़ा दुबई में क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हेथरो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के अहदेदार अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल करेंगे। दुबई में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग इमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं यानी तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाले सवालात का रास्ता रुक जाएगा। नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुकूमतें एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और ना मुदाखलत करती हैं। एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना गैर सियासी सोच है। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की तारीख में हमेशा सीनियर जज चीफ जस्टिस तैनात हुआ। जजिस पर अवाम का भरोसा बहुत ज़रूरी है। 26वीं यानी तरमीम से अदलिया तकसीम हुई, अदालत के अंदर अदालत बना दी गई है। ये पहली दफ़ा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को जेल से रिहाई मिल गई। दोनों बहनों को रोबकार मौसूल होने पर जेलम जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों को अदालत ने रिहाई दे दी। मेरा नहीं ख्याल कोई डील हुई है, मेरा काम नहीं अदलिया के मामलात में मुदाखलत करें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की इंक्वायरी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। कानून की पासदारी न करने वाले अफराद की भी पकड़ होनी चाहिए। पुलिस को ऐसी सूरत हाल में लाकर खड़ा किया जाता है कि वो कार्रवाई करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। 26वीं यानी तरमीम पर PTI भी खुश है। 26वीं यानी तरमीम पर PTI की गैर एलानिया रजामंदी शामिल थी। तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी लीडरशिप से लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। ATB बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। दोनों फ़रीक़ैन ने मुल्की महसूलात में इजाफ़े, इलाक़ाई ताउन और इस्लामाबाद में ADB दफ्तर की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना की डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसीम इम्कानात की अहमियत उजागर की।